So good morning students. Today we will continue with our class chapter 3 that is global warming. Global warming में हम लोग आगे 2 पैरा पढ़े हैं, तो तीसरा पैरा हम पढ़ेंगे. कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी भेजे थे, वो भी आप लोगों ने अभी होमवर्क सेंड नहीं किया, मैंने व्यू किया था इस पे. तो उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपके वो असाइनमेंट दिया है वो पूरा करके अपलोड कर दो. आपको अगर नहीं आता तो मुझे कॉल कर लो, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. तो आज तीसरा पैरा हम पढ़ेंगे. ग्लेशियर्स फ्रॉम दिस रीजन mother several streams and rivers in the subcontinents, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, and Bangladesh. But one unnatural phenomenon is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land. Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% land area under freshwater ecosystem that includes subtropical lakes of Jammu, floodplain lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to the other glacier regions in the world. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of the glacier. 16% of the glacier in the last 40 years. Similarly, we have lost about 18% of the Kulhai Glacier, the main source of drinking water and irrigation in valley during the same period. तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि ग्लेशियर्स जो होते हैं फ्रॉम दिस रीजन, जो हमारे इस रीजन, जो मैंने कल आपको बताया कि एशिया के जो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा ग्लेशियर रीजन है, ये माँ है. किनकी माँ है? सारे जितने दरिया निकलते हैं, गंगा, जमुना, सतलुज, चनाब, ब्रह्मपुत्र, जितने बड़े बड़े दरिया निकल रहे हैं उन सबकी माँ ये ग्लेशियर से है, क्योंकि वो इन ग्लेशियर से निकलते हैं. वी सपोर्ट इकॉनमी, और इन ही दरियाओं से सारी जो हमारी ये कारोबार, सब कुछ, खाना पीना, वो सारा इनसे ही चल रहा है. लाइवलीहुड जो है मिलियंस ऑफ पीपल इन सेवन कंट्री, सारी कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में. बट वन अननेचुरल फिनोमेना इज सेट टू चेंज द वेरी लाइव्स ऑफ पीपल आर वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कह रहा है, लेकिन एक फिनोमेना, एक आने वाली कुछ चेंज ऐसी है जो सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देगी, न सिर्फ हमारे खित्ते में बल्कि सारे दुनिया में. एंडेंजरिंग देयर एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा है. ह्यूमैनिटी इज अबाउट टू फेस द डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफी व्हिच हैज नॉट बीन एनकाउंटर्ड सिंस ब्लैक डेथ. ब्लैक डेथ के बाद ऐसी कोई, मतलब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो ह्यूमन लाइफ ने कभी देखा नहीं है. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं अभी ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट ही नहीं हो, लेकिन मोस्टली जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स है वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई है और ये बढ़ने वाली है आने वाले कल में. एक ऐसी रेट पे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. 2 decades back global warming was considered a Western concept.
मतलब 2 दहाई पहले जो सारे लोग कहते हैं ये वेस्टर्न में होता है ये ग्लोबल वार्मिंग, हमारे यहाँ नहीं होता। जैसे वेस्टर्न होता है यूरोपियन कंट्रीज, जो अमेरिकन कंट्रीज है उनमें, लेकिन अब ये अक्रॉस द ग्लोब हो गया है। टुडे प्लेस एज कोल्ड एज कश्मीर जो है वो भी इसका इफेक्ट देख रही है। जैसे जम्मू कश्मीर जो है इट इज यूनिक, हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसका 6% लैंड जो जम्मू कश्मीर हमारे का है, इसका 6% लैंड जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के लिए आता है। दैट इंक्लूडिंग सब ट्रॉपिकल लेक, जैसे लेक्स हमारे हैं, झील डल है, वलोर है, मानसबल है, जम्मू में मानसर है, एंड फुड प्लेन लाइक कश्मीर वैली, हाई अल्टीट्यूड हिमालय लाइक पेरेनियल रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम जैसे जहलम है, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, पॉन्ड, स्नो फेड स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, रिजर्व, बहुत सारे पानी का जखीरा था यहाँ पे है और है भी अभी। एज वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन। क्वालिटेटिव तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है एक तो पानी की जो उसका जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है और उसकी मिकदार, क्वांटिटी तो और उसकी मिकदार भी कम हो रही है। इट इज सेड दैट इन फ्यूचर इंटरनेशनल कह रहे हैं कि आने वाले जो भी जंग लड़े जाएंगे वो पानी के ऊपर लड़े जाएंगे, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत होगी। ग्लेशियर इन द जम्मू कश्मीर आर रिसीडिंग फास्ट, ये बहुत जल्दी मतलब एक एनॉर्मस रेट पर ये मेल्ट हो रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट कंपेयर टू अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। इन सुरू बेसन अलोन वी हैव लॉस्ट 16% ऑफ ग्लेशियर। सुरू हमारा जो बेसन जो हमारा ग्लेशियर है वो 16% हमने लॉस्ट किया है इन द लास्ट 40 ईयर्स। सिमिलरली वी हैव लॉस्ट 18% ऑफ द कोलाही ग्लेशियर, द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन द वैली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। लास्ट 40 में से कोलाही ग्लेशियर जो था, ग्लेशियर जो जिससे हमारा 18% जिसका हमने खो दिया है, जिससे हमारा मेन सोर्स जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का था वो भी हमने खो दिया। दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग हमारे स्टेट में भी और अनकंट्रोलेबल रेट पे चल रही है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे कुछ करेंगे।